ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦਹਿਨ ਅਗ ਪਾਪ ਪ੍ਰਨਾਸਨ। ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਸਨ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰਣਾ ਸਰਨ ਜਾਚਕ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲਣ। ਆਤਮ ਰਤ ਸੰਗ੍ਰਹਨ ਕਹਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਤ ਲਾਗੈ ਸੋ ਪੈ ਤਰੈ। ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸੀ ਅੰਗਰੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲਹਿ ਨਾ ਕਰੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਹਿਲਾ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੋ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਿਤੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬਹਿਬਲ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਭਾਈ ਸਹਿਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਲਾ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲੋ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਇਹੀ ਅਭਿਆਸ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਕਰੋ। ਤਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਵੋ ਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਸਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਕੜ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਦ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਆਤਮੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਹਿਲਾ ਜੀ ਜਗਤ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਰੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਏ ਤੇ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਹਿਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਘੀ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਵਗਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ।
तोरी न टूटै छोरी न छूटै ऐसी मादो खिंच तणी। दुखियां दी सेवा करन लग पिया जो गुरु अंगद दे सह महाराजियां दे बचन सी उसे तरह कमाउंदा। उन्हां दे तप दे हिरदियां नूं शांत करदा। संगत दी सेवा करन नाल उस दे शरीर नूं काफ़ी खिचल पै गई, पर सहले ने संगत दी सेवा बड़ी सहज नाल संभाल के रखी, गुरु दा बचन कमाया। अजिहा समा आ गया कि देश विच काल पै गया, नाल ही महामारी फैल गई। काफ़ी समा मीहां नाल पिया होया खूह दा पानी भी थल्ले लथ गया, जिस नाल पैलियां विच रता भी आनना होया। समा बहुत भयानक बन गया, बीमारियां फैल गईयां, घर विच किसे दे प्रसादा नहीं है, लोग भुख दे नाल तड़फण लग पे। ये देख के भाई सहले ने अपने घर तो लंगर जारी कर दिता, नाल ही लस्सी बना ली, जो भी आवे उसनूं रोटी ते दाल खवाए, नाल ही लस्सी पिया देवे। इसे तरह भाई सहला जी ने हजारां दी सेवा कीती, ना ही सुकच्चिया ते ना मत्थे ते त्यूड़ी पाई, अते ना ही अपना आप गनाया। गुरु साहब जी दे बचन कमाउण लग पिया। भाई सहला जी लंगर जारी रखदा दिन रात, रोटी ते दाल ते नाल लस्सी जरूर पिलाउंदा है। लोग इस वस्तुआं लैके खांदे ने, नाले गुरु साहब दा शुकराना करदे ने, ते कई लोग भाई सहले नूं घूरदे वी ने। ਜਿਹੜੇ घर दे मैंबर सी वो भाई सहले नूं कबोल बोलदे ने कि तैनूं की लोड़ पई सी, काल पिया होया है, अपने जियां वास्ते तू अन्न दाना रख लैंदा। पर भाई सहला जी इस वरतारे दा भी रोस ना मनदा, जो भी इस नाल माड़ा वरताओ करदा उसनूं हस के जर लैंदा। सेवा करदे नूं इतना स्वाद आया कि इस नूं अंदरला प्रकाश हो गया, अंदर चानण हो गया। हुण ये परमेश्वर नूं पाउण दे योग बन चुका सी। इसे तरह दी सेवा करके ये सिੱਖੀ दे लायक हो गया ते सच्चा सिख अखवाउण लग पिया। पर गुरु साहब ने इस दी होर प्रीख्या लैनी चाहिए। लैंदे भी क्यों ना, परखे बिना खजाने विच किस तरह कुछ पै सकदा है। इसने किसे पुरुष नूं रोटी दिती जिहड़ी कि कंडे तो कुछ सड़ी हुई सी। सड़ी रोटी देख के उस मंगते ने सहले नूं फड़ लिया अते दो धक्के मारे, दो मुक्कियां मारियां, नाल ही 10-20 गालां भी कढ़ दित्तियां। पर भाई सहले ने उस दियां गालां ते कुट नूं घिओ दियां नालां ही समझिया। भाई सहले ने उस मंगते दे चरण फड़ ले अते कहा कि तू मैनू भुल्ले नूं राहे पाया है, मैनू भुल्ले होए नूं सिद्धे राह पा के तू बड़ा पर उपकार कमाया है। मेरी गलफत कारण कई प्रशादे सड़ गए सी, जेड़े के कईयां ने दुखी होके खाधे होणगे, पर किसी ने भी मैनू मेरी ये भुल नहीं कही। धन तेरी माँ है जिसने तेरे वर्गा सिक्ख्या देने वाला पुत जन्मिया है। भाई सहले ने उस दे चरण पकड़ के भुल बख्शाई ते कहा कि अगे तो मैं वादा करदा हाँ कि रोटियां 7 सवाइयां बड़े प्रेम नाल पक के करो आउणगियां। इस तरह भाई सहले ने ते भाई सहले दी पत्नी ने बड़ी सेवा कमाई, धन पदार्थ खर्च कर दिता, सारा घर बाहर वेच दिता। इस तरह उसने काल दे समय भारी सेवा करके अपने मन नूं गुरु साहब जी दे बचनां नाल जोड़ लिया। जमीन, हवेली, नगदी पैसे जिन्ने भी सन सब कुछ मुक गए। हुण भाई सहले दे अत दी गरीबी आ गई। दोवें जी अन्न तो भी अतर हो गए, पर डाडी गरीबी आई है। दोवां ने गुरु अंगद दे सह महाराज जी दे बचनां नूं कमा के रखिया होया है, क्योंकि भाई सहले ने अपनी घरवाली नाल बचन कीते सी
कि अज गुरु अंगद देव साहब महाराज जी ने आ बचन दिते ने, दुखियां दी सेवा करनी है, कोल कुछ है गए ते देन तो ना नहीं करनी, पर कदी अपने आप नूं जताउणा नहीं। गरीबी भी आ जावे ते गुरु नानक दे घर दा पल्ला नहीं छड्डना है, ओदे चरण फड़ के रखने ने। दोवें जी हुण अन्न तो भी अतुर ने, अत दी गरीबी है पर हिरदा उक्का ही ना डोलिया, ना दुख दे हथों रोए। हुण दोवें जी की करदे ने कि जंगल विच जाके कुटिया पाली है, जंगल विचों घाह कटना शुरू कर दिता। भाई सहला जी घाह कट के वेचदे ने, जिस नाल रोज एक चौवानी मिलदी है, उस विचों 7 पैसे ये अपने गुजारे लई रख लैंदे ने ते 9 पैसे संगत दी सेवा विच ला दिंदे ने। बेअंत कदी माया सी, हवेली सी, नौकर चाकर सी, पर सतगुरु ने प्रीख्या लैण वास्ते ये सारा खेल रच दिता। लोकां दे मेहणियां दी कोई परवाह नहीं करदा भाई सहला। लोग आखदे ने ओ सहलिया गुरु दे मगर लग के सब कुछ वका लियाई, तेरे कोल ते हुण रहन वास्ते घर भी नहीं है, खर्च करन वास्ते माया भी नहीं है, सोहणे बस्तर पाउण वास्ते तेरे कोल माया नाल बस्तर लै सके हुण माया नहीं है। दोवें जी हथ जोड़दे ने, आखदे ने कोई गल नहीं, गुरु अंगद देव साहब महाराज जी दा ये सब कुछ है, पहला भी घर ओदा सी ते हुण भी सब कुछ ओदा है। ये सब रजा मालिक दी है, कदी मन नूं डुलाउणा नहीं है, मन नूं परमात्मा दी रजा विच रखना है। कोई गल नहीं, ये सतगुरु परमात्मा दी अपनी मौज है। सतगुरु दा हुक्म है, काहू दीने पाठ पटंबर, काहू पलंग निवारा, काहू गरी गोदरी नाही, काहू खान पारारा, अहरख वाद न कीजै रे मन, सो कृत कर कर लीजै रे मन। अज पलंगां ते सौंदे आ, उहदी मौज दा नहीं पता है कदों उहने धरती ते पराली विछा के सवा देना है। भाई सहला जी सतगुरु दे बचन कमाउंदा, लोकां दे मेहणियां दी कोई परवाह नहीं करदा है, अपने विच मस्त रहिंदा है। इस तरह ये गुरमुखां दी रहनी अते करनी करके गुरमुख हो चुका सी। धन गुरु अंगद देव साहब महाराज नूं खबर पहुंची कि महाराज जी आप जी दा अनिन्न सिख हरीके दा रहन वाला भाई सहला जी, जिसने आप दे बचन कमाए ने, ते बचन कमाउंदियां घर माया धन सब कुछ दे दिता है। गरीब लोकां नूं काल पैण विच सारे लोकां दी मदद कीती है, ते हुण आप जंगल विच कुटिया पा के रह रहा है, घाह वढ के गुजारा करदा। धन गुरु अंगद देव साहब महाराज जी दया दे सागर दयालता विच आए, अपने सिखां नूं घल के भाई सहले नूं ते ओदी पत्नी नूं खंडूर साहब सद लिया। दूरों देख लिया सतगुरु गुरु अंगद देव साहब महाराज जी ने कि भाई सहला जी आ रहे ने। जिवें कृष्ण महाराज जी ने सुदामे नूं मिल लई जोड़ा भी नहीं सी पाया, अपना सिंघासन छड़ दिता सी, घुट के ओदे चरण फड़ ले सी। भाई सहला जी दूरों आ रहे है, नाल पत्नी है। धन गुरु अंगद देव महाराज जी अपने सिंघासन तो उठे, जोड़ा नहीं पाया है, नट के जाके भाई सहले नूं घुट के गल वकड़ी ले लिया, छाती नाल लाया ते उच्ची सारी किया धन सिक्खी। गुरु साहब जी ने दोहां जियां नूं मुक्ति दा पदार्थ दे दिता, अकाल पुरख नाल मेल करा दिता। धन सतगुरु गुरु अंगद देव साहब महाराज जी ने प्यार दिता ते बचन कीते, भाई सहला जेड़ा भी तेरी इस साखी नूं घर विच पढ़ेगा सुनेगा, ओदे घर विच कदी भी गरीबी नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा, ते उस घर दे अंदर किसे दी मदद करन वास्ते भी अंदर जज्ब बनिया रहेगा। जेड़ा भी प्यार नाल इस साखी दा उच्चारण करेगा, सदा उस घर विच दया बनी रहेगी। असी भी अपने मन नूं विचारीए कि असी गुरु साहब दे बचनां नूं मनदे हां कि नहीं।
ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥਾ ਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।